Morning students. Now, in previous classes, we have gone through the topic about the class and caste and the various and status and the role played by an individual living in the society. The students, we have gone through that how a person is controlled in the society, and moreover, this topic we are going to see. And in a previous topic, we have seen that every person now had having his or her a position or a status in the society, and according to that status and position, once one gets once get the respect in the society, and everyone is an actor who plays the role, holding the status and plays the role. We have seen that in our previous classes, and we have also seen that everyone is stratified, just holding the position in the stratification of the society. Moreover, students, we have to be the see that now we are going to see that society and social control. Then the next chapter we shall start understanding the social institution and introduction. Okay, a few points I am going to discuss about the society and social control. First of all, let's see that what is the social control. Social controls means every each everyone living in society is controlled by the society, controlled by whether controlled by the society or controlled by the institutions, administrative institutions, laws, and by the various means or methods. Everyone is controlled, and one thing. So this social control refers to that if anyone deviates from his way and from the social norms and from the social norms, so he and she is and he and she is now controlled by the different methods. Society now applies the different way to control them. This is the social control. Social control means refers to the anyone who deviates and violates the social norms in the society, and so he and she is called and known. He and she is controlled by the various methods and the way. So these methods and way to control one, to bring into the lines, to bring on the way to the social norms expected, to the social uh, to the social behavior expected. So this kind of the action and this kind of the initiation taken by the society uh, on by the society upon an individual who is distracting from the social norm. This is the known as a social control. Students, first let's see that here we will again recall the functionalist sociologist understand society. क्या वो समझते हैं कि society is an harmonious हारमोनियस एसेंशियली हारमोनियस, मानते हैं कि सोसाइटी इज वेरी मच एसेंशियली हारमोनियस, लेकिन वहां हम कार्ल मार्क्स को क्या देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज, सोसाइटी इज एसेंशियल अनइक्वल अनजस्ट
मार्क्स की थ्योरी क्या कहता है कि सोसाइटी इज अनइक्वल, अनजस्ट एंड एक्सप्लॉइटेटिव। लेकिन अदर हैंड्स जो फंक्शनलिस्ट्स हैं उनका मानना है कि नहीं, हमारा जो सोसाइटी है वो हारमोनियस है, एंड फॉर द नेसेसिटी एंड फॉर द वेरियस नीड्स द ह्यूमन बीइंग आर are interdependent, and and now the functioning their work as it is allotted to them or given to them as a roles they are playing harmoniously. But मार्क्स क्या कहता है कि नो, दिस सोसाइटी कॉन्ट्रडिक्टरी मानता है, वो सोसाइटी को एक स्ट्रगल्स मानता है, सोसाइटी को एक स्ट्रगल के फॉर्म में देखता है, हैव्स एंड हैव्स नॉट के बीच में। इसलिए वो कहता है कि ऐसे ये क्या है कि अनइक्वल है सोसाइटी, अनजस्ट है। एंड नाउ दिस व्यूज वी हैव सीन, वी आल्सो saw that how some sociologists also saw focused more on the individual and society, other collective like the class। इसमें भी हमने पढ़ा है आगे कि कुछ सोशोलॉजिस्ट हैं वो इंडिविजुअल पर ज़्यादा इम्फेसिस करते हैं। some sociologists now emphasis on the society, some emphasis on the classes, race and caste, तो different views are there now for the। जैसे फंक्शनलिस्ट क्या है, फॉर द फंक्शनलिस्ट सोशल कंट्रोल क्या है इन द व्यूज ऑफ द फंक्शनलिस्ट। अब हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शनलिस्ट now how they look and see the social control। social controls क्या है, why it is done, how it is done, how it is exercised upon an individual, this is the, so according to them कि the use of force regulate the social control is a force, ये एक force है that regulate the behavior of an individual and the group and also refers to, ये इंडिविजुअल और ग्रुप के बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, एक फोर्स है, एक ताकत है। मोर ओवर enforcing of the values and patterns for maintaining order in society। Why the social control is used, social force is used to to maintain the values, to keep intact the values and patterns of the social order। जो social orders हैं या जो सोसाइटीज है उस सोसाइटीज को मेंटेन करने के लिए या सोसाइटीज के वैल्यूज को प्रिजर्व करने के लिए, फॉर दैट नाउ दिस इज द यूज फॉर दैट, दिस सोशल कंट्रोल is now it is the force and it is used for the maintaining the values and pattern and orders of the society. Moreover, social controls here is directed to restrain deviant behavior ऑफ एन इंडिविजुअल। मैंने कहा कि ये सोशल कंट्रोल क्यों यूज किया जाता है इस फोर्स को, टू कंट्रोल द डिविएंट डिफाइंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, उसके इंडिविजुअल के डिफाइंड बिहेवियर एंड द अदर द ग्रुप्स ऑन वन हैंड, एंड अदर हैंड्स क्या करते हैं कि मिटिगेट टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप्स टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर्स एंड ग्रुप्स के को कंट्रोल करने के लिए और सोसाइटी को मेंटेन्स करने के लिए, ऑर्डर में उसकी जो ऑर्डर्स हैं सोसाइटीज के मेंटेन करने के लिए, दैट इज डन द सोशल कोहेजन और सोशल एक कोहेरेंस एस्टेब्लिश करने के लिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सोसाइटी में इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में टुवर्ड्स द, तो उसको एफोर्ड्स करता है ये फोर्स, एक कोहेरेंट बनाने के लिए, उसको अटैच करने के लिए सोसाइटी के साथ, that is the, and in this way social control is seen as necessary to stabilize stability in the society। तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी रिस्टोर करने के लिए फॉर दैट सोशल कंट्रोल इज यूज्ड एज ए फोर्स अकॉर्डिंग एज द फंक्शनलिस्ट थ्योरी, उसके अकॉर्डिंगली सोशल कंट्रोल एक डिफाइंस किया गया। Okay, further conflict theory usually would seen social control more as the mechanism to impose a social control of dominant social classes on the, इधर है कि conflict theorist किसने डिवाइड किया, conflict theorist का propounders कौन है, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे conflict theory जहाँ भी आएगा where you will understand the कार्ल मार्क्स।
तो कार्ल मार्क्स या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वो सोशल कंट्रोल को क्या मानता है कि सोशल कंट्रोल मोर एज ए मैकेनिज्म है टू इम्पोज द सोशल कंट्रोल ऑफ डोमिनेंट सोशल क्लासेस। कहता है कि सोशल कंट्रोल मीन्स इट इज इट इज ए mechanism तो ये एक डोमिनेंट है थ्योरी है और इसमें कंट्रोल्स द डोमिनेंट सोशल क्लास ऑन रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। डोमिनेंट सोशल क्लास क्या करता है कि रेस्ट ऑफ सोसाइटी को क्या करता है कि कंट्रोल करता है, यानी कि डोमिनेंट जो लोग हैं, सो हुसोएवर द डोमिनेंट इन द सोसाइटी, कैपिटलिस्ट क्लास, फ्यूडल लॉर्ड्स and haves they are the dominant indicating, यहाँ पे dominant उन्हीं को कहा जा रहा है addressing to them। the dominant imposes now mechanism है, ये social control क्या है, एक mechanism है इसी तरह and social classes है on the rest of the society। stability would be seen as the read of one section over the other, यानी कि stability means कि now read in the laws laws will be used against the one section by the dominant section against the weaker section पर हम मानते हैं, आपको एक्सप्लेन कर दें कि weaker section पर dominant section by laws उसको जो डिफाइंड है, जो स्ट्रगल में है या जो रिवोल्ट्स करना चाहता है, उस पर एक क्या है, ये एक उसको सप्रेस करने का एक तरीका है सोशल कंट्रोल। और ये सोशल कंट्रोल्स कौन करता है, बाय द लॉज, स्टेट एंड गवर्नमेंट। इसीलिए मार्क्स क्या कहता है कि स्टेट इज नथिंग, इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड द डोमिनेंट। ये डोमिनेंट्स के हैंड्स में एक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो रिवोल्यूशनरीज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं समाज में, सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए और इस एक्सप्लॉयटेशन से भी है बियॉन्ड जाने के, एक्सप्लॉयटेशन से रिलीव करने के लिए उनके अगेंस्ट में कार्ल मार्क्स मानता है। तो यहाँ पे जो उसने सोशल कंट्रोल की बात कही, ये जो हमारे थ्योरिस्ट हैं कि नाउ दिस इज द क्लास ऑफ द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, स्टेबिलिटी इन द अदर। लाइकवाइज लॉ वुड बी सीन एज द फॉर्मल रीट। लॉ क्या है, फॉर्मल रिटन लॉ जिसको हम कह सकते हैं। लॉ इज द फॉर्मल वुड बी द फॉर्मल रीट ऑफ द पावरफुल। ये पावरफुल लोगों का एक इंस्ट्रूमेंट है। और लॉ क्या है, क्यों कि नाउ स्टेट इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द डोमिनेंट्स, अंडर द कंट्रोल ऑफ द कैपिटलिस्ट। ये बात मैंने पहले से भी आपसे की कंट्रोल। तो ये एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड व्हाई दिस powerful and dominant class exercise this power, exercise the governmental power, because to restore the interest in their society, in the society, समाज में अपने इंटरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए वो इसे यूज करते हैं स्टेट को। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स क्या कहता है, स्टेट इज द जस्ट state and the government is the instrument in the hands of the dominant class or the capitalist class, modern sense में अगर हम if you see the modern sense। तो further here we are the social control। here social control refers to the social process। ये एक social control क्या है, एक social process है या एक टेक्निक है या स्ट्रेटेजी है by which behavior of the individual and groups are regulated, you know very well, and it refers to both to the use of force to regulate the behavior of individual or the groups, if use and to refers to the enforcing values। इसमें क्या कहता है, वैल्यूज को रिस्टोर करने के लिए, इन वैल्यूज को एस्टेब्लिश करने के लिए, जो वैल्यूज समाज की जो इरोड हो रहे हैं उसको उसका डिफाइंड किया जा रहा है, उस वैल्यूज को ओबे नहीं किया जा रहा है इंडिविजुअल्स या किसी ग्रुप के थ्रू। तो दैट इज द एस्टेब्लिश्ड, ये स्ट्रेटेजी है या वेदर द इट इज द टेक्निक
or it is the methods to control the groups and the society, groups and individual, and the pattern maintaining order in or society में order maintain करने के लिए this is the, for maintaining the order this is the use. Further, social control में भी informal, दो तरह के controls होते हैं, एक formal controls में भी और एक informal controls में. The now here social controls may be informal or formal. When formal social control means laws, मेरी कहने का मतलब social laws, written laws, written regulations, now codified, systematic, and other formal mechanism of control is used. This is the known as the formal social control. अगर हम laws के through, written authority के through अगर हम social control करते हैं, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, तो इसे हम फॉर्मल सोशल कंट्रोल्स कहते हैं. दिस इज द नोन एज द, एंड द रेस्ट इट इज नोन एज द फॉर्मल सोशल. देयर आर एजेंसीज एंड मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मल सोशल कंट्रोल फॉर, जैसे मान लीजिए कि लॉ एंड द स्टेट. फॉर्मल सोशल कंट्रोल के लिए एजेंसीज है. स्टेट क्या है कि एजेंसीज है. इट इज जस्ट एट द एजेंसी with the laws and with the authority to control the people's, to control the society as a whole. और कैसे स्टेट कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कैसे हमें कंट्रोल करती है, जो डिफेंस होते हैं और जो डिस्ट्रैक्ट्स होते हैं बाय यूजिंग द. एंड लॉ क्या होता है, रिटेन. लॉ इज अ रिटेन. एंड मोर ओवर control, for the example law and state in the modern society, formal mechanism and agencies of social control are emphasized. और मॉडर्न सोसाइटी में ज़्यादा अधिक से अधिक फॉर्मल जो कंट्रोल्स है उसको ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है. यानी कि एवरीथिंग शुड बी टैकल्ड बाय लॉ. एवरी वन शुड बी, कोई भी इंडिविजुअल डिफाइंड है बाय द लॉ, उसको by the laws to bring on the lines. This is the here. And now in every society there is another type of the social control, that is the informal. That is the called as the informal, and it is the personal, informal, and unofficial and uncodified. ये codified नहीं है, officials नहीं है, और now it is the quiet, it is the personal एंड बिहेवियर. जैसे मान लीजिए इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कौन कौन सी इससे मेथड्स हैं इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल्स के, जैसे स्माइल्स. इंक्लूड द स्माइल्स. इट इज द पार्ट ऑफ मेकिंग फेसेस, बॉडी लैंग्वेजेस, एक्सप्रेसेस ऑफ दैट, फ्रॉम्स एंड क्रिटिसिज्म, रेडिकल्स, लाफ्टर्स. दिस ऑल देयर कैन बी द ग्रेट वेरिएशन दे आर यूज विद इन द सोसाइटी. एक by the different way, these methods, informal methods, are used in the different society. Or now it is in the day today life there is a quite effectives. Or some, however, some of the cases informal methods of social control may be the not adequate, क्योंकि इन्फोर्स कॉन्फॉर्मिटी और द ओबीडियंस के लिए ये एडिक्वेट नहीं है. कोई बात से नहीं मानता. Nobody's विदाउट द लॉ, और बहुत बात से लोग नहीं मानते हैं, या बॉडी लैंग्वेज से, या किसी भी एक्सप्रेशन से, नो दे आर. तो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस इज दैट कि नाउ देयर इज वेरियस एजेंसीज ऑफ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के लिए. एजेंसी क्या है, फैमिली है, परिवार आप डिविएंट होते हैं, परिवार आपको ट्राई करता है, आपके फादर मदर ट्राई करते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए. रिलीजन है आपका, किनशिप है, रिलेटिव्स आपको कंट्रोल by them. And have you heard honor killings? Now here is the newspaper reports have the given identity the different agents of the social control involved. Social control में कई agencies involved होते हैं. Now you can study about that. Sanction क्या है? We shall see the sanction is a mode of reward or punishment. किसी को रिवार्ड एंड पनिशमेंट देने का एक तरीका है सैंक्शन. पनिशमेंट रीइंफोर्सेस सोशली एक्सपेक्टेड फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर. और इसे फोर्स रीइंफोर्स क्यों किया जाता है कि सोशली एक्सपेक्टेड बिहेवियर को रिस्टोर करने के लिए,
If somebody is not behaving according to society, against him or her, this is the sanction is used, and this sanction may be the positive or negative. In for a good, the good it is the expected the good behavior reward is given by, and for the not good behavior now punishment is given there. So on the other hands, negative sanctions are also used to enforce rules and restrain the deviants. जो deviants होते हैं उनको कंट्रोल्स करने के लिए और रूल से and restraints are now used. Moreover, deviants on deviant. Who are the deviants? Now, first, let's see who are the deviants. Here, we should see deviants are those actions, mode of action to which don't conform to the norms. वो जिन जो लोग सोशल नॉर्म्स को उनकी सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली वो कन्फर्म नहीं बिहेव करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड द एज द डिविएंट्स, वो डिविएंट कहे जाते हैं. मोर ओवर वी कैन सी दिस डिविएंट्स वैल्यू हेल्ड बाय मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द सोसाइटी. मान लो कि कोई वैल्यूज है उसको मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटीज फॉलो करते हैं, दे डू, बट द डिविएंट इज वन हु डज नॉट फॉलो दैट. तो उससे हम क्या कहेंगे? वो डिविएंट कहेंगे. ओके, एंड व्हाट इज द रिगार्डेड एज द डिविएंट इज द वाइडली वेरिएबल एज द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड डिफरेंट कल्चर्स. ये अलग अलग है चीज है. कहीं वो व्यक्ति कहीं डिविएंट है, वो नॉर्म्स कहीं के लिए डिविएंट है, कहीं के लिए उसका व्यवहार डिविएंट्स नहीं है. So that depends on the different society and the culture and subculture. Similarly, ideas of deviance are challenged and changed from one period to another. ये deviance की जो आइडिया है एक पीरियड से दूसरे पीरियड से चेंज होता रहता है. इसका फॉर सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने कल कहा था कि once the slave trade was relevant for the society, लेकिन आज क्या है? स्लेव ट्रेड इज मोस्ट ये क्रिटिसाइज्ड इशू. अगर फर्दर देखा जाए, एग्जांपल्स लीजिए कि एक वुमेन अंडरस्टैंड एंड चूजिंग द बिकम द एस्ट्रोनॉट्स इन द मेडिवल पीरियड. मान लीजिए कि अकबर के टाइम में या वेदर द बाबर के टाइम में कोई अगर वुमेन या उस मेडिवल्स टाइम में कभी she aspired for, she wished for becoming the astronauts. Understand? So now her behavior will be at that time, during those time, her behavior will be considered as the deviant behavior. She is the deviant. But today, if a girl wants to become the astronauts, wants to become an IAS officers, wants to become any administrators, then now what will be the? She will be the she will be the much appreciated by the society. लेकिन once in medieval time, she would have been the much criticized. तो ये जो डिविएंट जो बिहेवियर है ये किसी सोसाइटी के लिए फॉर द टाइम पीरियड के लिए ये मे बी डिविएंट, बट द फॉर द others time it may not be so. Understand? So students, moreover, we have studied the this is the state and the society. We have seen a lots of things that I suppose that your students would have understand this all. And moreover, now we should start the next thing is that the understanding social institution. Let's say see the understanding the social institution. And now this in the beginning of this study of your course, as a individual occupies a place of location in. हर आपने पहले भी पढ़ा कि every individual have its place and location in society. Okay, and each one has its status and role play. मैंने पहले भी पढ़ाया है नेक्स्ट क्लास में पीछे कि हर इंडिविजुअल का एक
स्टेटस है, उसका रोल है सोसाइटीज में, एंड दे आर नॉट लाइक द रोल ऑफ द फिल्म और एक्टर्स, देर आर social institution that constrain and control and punish and reward. अब ये भी हमने पढ़ाया था कि सोशल पढ़ाया कि जो सोशल कॉन्स्ट्रेंट है या सोशल कंट्रोल है, उसे क्या करता है कि इंडिविजुअल उतना फ्री नहीं है, इंडिविजुअल उस पर एक कंट्रोल है, कॉन्स्ट्रेंट है, आप पर भी कंट्रोल है, हम पे भी कंट्रोल्ड है, कॉन्स्टेंट्स है कि वी ऑल आर द कॉन्स्टेंट बाय द सोशल नॉर्म्स बिहेवियर एंड द पनिश्ड और रिवार्डेड, and this is the, and moreover ये they could be the macro social institutions, कंट्रोल करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है, एजेंसीज है, वो मैक्रो हो सकते हैं, लाइक द फैमिली, लाइक द इंडिविजुअल और द फैमिली, और ये मैक्रो सॉरी मैक्रो मैक्रो हो सकता है, यानी कि लार्ज इंस्टीट्यूशंस हम पे कंट्रोल कर सकती हैं, बड़ी बड़ी स्टेट लाइक इंस्टीट्यूशन कंट्रोल कर सकता है, पूरी सोसाइटी एज ए होल कंट्रोल कर सकता है, कम्युनिटी। लेकिन इसके साथ साथ माइक्रो लेवल पर, यानी कि फैमिली या कोई इंडिविजुअल हमें कंट्रोल कर सकते हैं, हमें समझा सकते हैं, आप तो उसको यू कैन बी द सेट राइट बाय this is the, and macro and family, here is the we are going to study here now about the in this social institutions जो जो हमें इंडिविजुअल को जो कंट्रोल करते हैं, जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में अबाउट इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दैट। एंड उसमें क्या क्या आ सकते हैं, आएगा हमारे स्टडी के में, पहला आपका फैमिली आएगा, उसके बाद मैरिज आएगा एंड किनशिप आएगा। फैमिली के बारे में, मैरिज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज द मैरिज, एंड नाउ द किनशिप, पॉलिटिक्स वी शैल स्टडी, economics and religion and the education. These institutions we shall now study in this chapter. और moreover in the broadest sense अगर देखा जाए, institutions is the something that works according to the rule established. कोई भी institution है, बड़ा है छोटा, big and small, वर्क करता है कैसे, हाउ दिस वर्क करता है आपके according to established rules and law and the acknowledged by the law and the custom, या तो कस्टम हो या कानून हो या हमारा सोशल लेजिस्लेशन, उसके अकॉर्डिंगली दैट, एंड whose regular and the continuous operation can't be understood without the taking those rules into account। और इसे हम नहीं, जब तक हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं स्टडी करेंगे, जिस पर हाउ दीज आर द इंस्टीट्यूशंस नाउ कंट्रोल, तो तब तक हम उसको सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। मोर ओवर हियर द एन इंस्टीट्यूशन कैन आल्सो बी द व्यूड एट द एंड ऑफ इटसेल्फ, संस्थाएं भी अपने आप को, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टडी के एंड, सोशियोलॉजिस्ट के लिए दिस आर द एंड एंड हियर वी हैव ऑलरेडी, आपने पहले भी पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्टिंग एंड द डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सोशियोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आप पढ़े कार्ल मार्क्स का, सोशियोलॉजी के अंदर विद इन द सोशियोलॉजी, एंड फंक्शनलिस्ट थ्योरी एंड द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, दोनों आपने पढ़ा। एंड नाउ टू द व्यूज सी द सोसाइटी एंड द सोशल बिहेवियर इन अ डिफरेंट वे। ओके, नाउ we have seen that if functionalist view understands social institution, जो फंक्शनलिस्ट है, जो सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारे जितने भी, उसको एज ए कॉम्प्लेक्स देखते हैं, सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स, एंड सोशल इंस्टीट्यूशन आर कॉम्प्लेक्स एंड द अलॉट्स ऑफ एज ए सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड बिलीफ्स एंड वैल्यूज। नाउ सोशल इंस्टीट्यूशंस एज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ, जो सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारा समाज, वो कंस्टिट्यूटेड है किस चीज से, हमारे सोशल नॉर्म्स से, सोशल बिलीफ से, वैल्यूज से, एंड रोल रिलेशनशिप दैट अराइज इन रेस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। वो समाज की नीड्स के अनुसार वो रिस्पॉन्स करते हैं। फर्दर सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई द सोशल नीड्स। सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों है, हमारे नीड्स के लिए। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्यों है, व्हाई दे आर एग्जिस्टिंग, नीड्स के लिए। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्यों है, हमारे नीड्स के लिए। तो दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस आर एग्जिस्टिंग फॉर द नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स
एंड सोशल इंस्टीट्यूशन मोर ओवर अकॉर्डिंगली वी फाइंड इनफॉर्मल, इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा कि इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटीज। फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन में स्टेट है, गवर्नमेंट है, अदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, और इसके साथ रिलीजियस, और इनफॉर्मल में फैमिली आता है, रिलीजन आता है। ये सब हमारा क्या है, संस्थाएं हैं, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या फैमिली है, ये भी एक संस्था है, लेकिन इनफॉर्मल है, नहीं चाहता। मोर ओवर द इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशंस बाय लॉ एंड फॉर्मल एजुकेशन आर फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन। Here we see that a conflicts views holds that, जैसे कार्ल मार्क्स क्या conflicts views में उसने क्या किया, individuals are not placed equally in society। वो कहता है कि individuals जो हैं वो equally society में placed नहीं है, there is a upper and the lower strata, and moreover all social institutions whether family और उसका मानना है religious, political, economic, legal will operate in the interest of the dominant section of the society। वो कह रहे कि जितना भी लीगल, सोशल, इकोनॉमिक जो भी इंस्टीट्यूशन है समाज में, सोसाइटी में, वो सभी क्या है, दे आर गवर्न्ड बाय ए डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द ग्रुप इन द सोसाइटी। एंड क्यों ये ऑपरेट हो रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, फॉर देयर इंटरेस्ट, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट सेक्शन, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट, उसके कहने का, फॉर द इंटरेस्ट एट द हैव्स। आप समझ सकते हैं। मोर ओवर सेक्शन, कास्ट, ट्राइब्स, जेंडर, द डोमिनेंट सोशल sections not only dominates political and economic institution but ensures that ruling class ideas become the ruling ideas of the society, ruling, and this is very different from idea that are the general needs of the society। तो उसका जो आइडियाज है कार्ल मार्क्स का, वो नीड्स, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों वर्क कर रहे हैं, हमारे नीड्स के लिए। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि नहीं, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे हैं, these institutions are working for the interest of the dominant group in the society। लेकिन फंसलिस्ट इसको नहीं। बॉयज स्टूडेंट्स, वी शैल स्टडीड इन दिस अबाउट द फैमिली, मैरिज और किनशिप, नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे। एंड दिस इज द so much for this period, thank you very much, okay।